On behalf of Shivi Forensic, I extend a warm welcome to each or one of you. Your participation reflects your keen interest in the ever evolving and intriguing field of forensic science. Today, we are privileged to have Ms. Ankita Sinha ma'am to enlighten us on intriguing topic sexual offenses, a medico-legal perspective on impact and investigation. Ma'am is an assistant professor in Department of Forensic Science at Adamas University, Kolkata. She has also been a guest faculty of Forensic Science at DNS Institute, Patna. She has qualified UGC NET twice in Forensic Science as well as FACT exam in 2024. Participants, you are encouraged to engage actively throughout the session and address your queries via chat box. Now, let's begin the session and make the most of this learning opportunity. Thank you. कर दे रही बस 2 मिनट में पापा का बैलेंस डाल के कर दे रही अरे पापा का बैलेंस डाल रही थी वो तो ना कुछ नहीं करा कुछ Good morning, all. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. So I am Akshita, as she introduced me. So today's topic we are going to start is sexual offenses. So you all are ready for the class? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. So I want to ask you that in which language you all are suitable, like bilingual, English, Hindi, both, or only in English? Ma'am, both. Okay. Okay, so let's start. आवाज Hello? The PPT is visible to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. So today's topic we are going to discuss is sexual offenses, a medical legal perspective on impact and investigation. So what is sexual offenses? Abuse the person. What? Abuse the person, ma'am. Sexual offenses, or it can be called as a sex offenses, is a criminal act, okay, in which consent is not needed. It's against the will, it's against the consent of the victim, okay? And it includes exploitation, violence, different sexual attacks and acts against a female victim or any victim. It may be a child, it may be a male, or it may be a female. Okay. And Yes, classification, ma'am. it is the sexual offenses are classified into four groups. First is natural sexual offenses. Can anybody can give me examples of natural sexual offenses? What comes under natural sexual offenses? Let's
let's make the class interactive. Okay, what comes under natural sexual offenses? Ma'am, rape cases. Yeah, very good. Rape cases, incest, and adultery. Okay. And in unnatural sexual offenses, what is unnatural offensive sexual offenses? In which unnatural things which is beyond the nature is happening. Okay, in which the sodomy, buccal coitus, etc. comes. Okay, and sexual perversions. What is sexual perversions? And sexual perversions is also known as sexual paraphilias. Okay, what is sexual paraphilia or perversion? Anyone? Abnormal behavior patterns. Yeah, sexual paraphilia or perversion is abnormal behavior other than intercourse. Okay, kind of fantasies, dark fantasies, all comes under sexual perversions. Okay, so let's move to the Yes, next ma'am. slide. So, natural sexual offense, first rape. The screen is visible. Yes, Yes, ma'am, ma'am. visible. Okay, so you all know it's come under sections 375 of Indian Evidence Act and section 63 of BNS. What is the full form of BNS? Bharatiya Bharatiya Nyaya Nyaya Samhita. Sanhita. Sanhita. Okay. So the definition of rape is penetration of penis to any extent into the vagina or to the mouth or to the urethra or anus of a woman या फिर उससे भी वही चीज कराना उसके साथ ऐसा हरकत करना या उससे भी सेम वो चीज कराना is known as rape or insertion of any object or any part of the body into the same thing vagina mouth uterus of a woman और सेम उससे वही चीज कराना either penis or instead of penis any other objects like you have heard about the cases in which a man puts a rod inside the nirbhaya in nirbhaya case some puts glasses candles so these are all things are objects तो objects भी अगर कोई insert कर रहा है तो वो भी rape के अंदर आता है applying the mouth to the sexual organs of a woman or a victim here it's not included only a woman a child also okay so applying of mouth is also comes under rape manipulation of any part of the body of a woman so as to cause penetration into the vagina urethra or anus of the woman ठीक है so section 375 defines rape based on the absence of consent okay अगर कंसेंट है तो वो रेप थोड़ी है कंसेंट और विल जब वुमेन का नहीं है तो ही तो वो रेप कहलाएगा ना यस और नो Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो उस हाँ तो जो डेफिनेशन है रेप का वो जो हमने पढ़ा चार ऊपर कि और पेनिट्रेशन ऑफ पेनिस पेनिट्रेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ एनी बॉडी पार्ट और पुटिंग अप्लाइंग माउथ इनटू द बॉडी पार्ट्स ऑफ फीमेल ये सब जो है ये सब अगर होता है तो दैट मीन्स इट्स रेप even slightest penetration of penis is also rape okay जरूरी नहीं है that the person is doing excuse me एक minute okay the screen is visible Yes, ma'am. hello Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. so it's not important कि the person is fully inserting the penis into the vagina and breaking the hymen then only it's known as the rape okay slightest penetration of the penis into the labia majora of a woman is also known as rape okay so Yes. what is the section 375 defines rape based on the absence of consent under various circumstances and the circumstances are first of all against her will उसकी इच्छा नहीं है उसने ना बोल दिया है और ना बोलने के बाद भी अगर आप उसके साथ ऐसा कर रहे हो दैट इज रेप ठीक है विदाउट हर कंसेंट उसकी कंसेंट नहीं है थर्डली विथ हर कंसेंट और उसका कंसेंट आप कैसे ले रहे हो पुटिंग दैट पर्सन इनटू द फियर ऑफ डेथ और हर्ट मान लो फॉर एग्जांपल A is a woman and B is a man so B is threatening A that I will kill you
or I will hurt you badly. Please make sexual relation with me. So उसमें the woman in fear of death, she will give her consent, but that also will be considered in rape only. Okay? आप एक फीमेल का कंसेंट ले रहे हो बट उसको फियर में डाल के ले रहे हो, तो वो भी रेप है. Got it? With her consent, when the man knows that he is not her husband, or she believes herself married. Okay, the fourth one का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? फोर्थ पॉइंट का मतलब क्या है? Anyone? Okay. इसमें भी आप एक फीमेल का कंसेंट ले रहे हो, उसके कंसेंट के साथ, बट उस फीमेल को बिलीव है कि सामने वाला जो पर्सन है वो उसका हस्बैंड है. मीन्स इम्पर्सोनिफाई करके, रेप बाय इम्पर्सोनिफिकेशन, मतलब अपना आइडेंटिटी उसने चेंज कर दिया, डिस्गाइज कर दिया है अपने आप को. एंड द फीमेल इज बिलीविंग दैट द पर्सन इज माई हस्बैंड, एंड by trusting him that he is her husband, तब वो उसको अपना कंसेंट दे रही है, तो भी वो रेप कहलाएगा. ओके, रेप बाय इम्पर्सोनेशन. ओके, समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fifth one is with her consent, when at the time of giving such consent, by reason of unsoundness of mind or intoxication or the administration by him personally or through another of any stupefying or unwholesome substance. Have you heard about rape date? Date rape के बारे में सुना है? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Date rape जो होता है, date and rape means if a person is taking into on a date, okay, you believe that person, and that person is stupefying your drink with certain drug, and the drug is mainly GHB, which hit your GABA, your central nervous system. The drugs are mainly fentanyl, and these drugs are known as date rape drugs और क्लब ड्रग्स. ओके, मीन्स जब आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो, उसके साथ डेट पे या फिर पार्टी में जाते हो, ज्यादातर ये जो रेप डेट होते हैं ना, ये आपके रेप पार्टीज में होती हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज में होती हैं, जहाँ पे फीमेल्स के ड्रिंक्स को स्टूपिफाई कर दिया जाता है ड्रग से. मेनली जो ड्रग्स होते हैं वो आपके GHB होते हैं, ठीक है, फेंटानिल हो गए, ये सब हो गए, जिनको हम डेट रेप ड्रग्स भी बोलते हैं, क्लब ड्रग्स भी बोलते हैं. तो जब ये ड्रग्स जो होते हैं फीमेल के ड्रिंक्स में हम मिला देते हैं, तो फीमेल्स को कुछ भी नहीं समझ में आता है. विद इन अ सर्टेन मिनट ऑफ टाइम वो उनका माइंड जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत ही बुरी तरीके से डिप्रेस हो जाता है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो जाता है, उनको कुछ भी नहीं पता चलता है. फिर द मैन, जो आदमी है, जो मेल है, वो उनके साथ रेप करता है या फिर उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है, जिसके बाद व्हेन द फीमेल वेक्स अप नेक्स्ट मॉर्निंग, उनको कुछ भी रिमाइंड या रिमेम्बर नहीं होता है, कुछ भी याद नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पे भी उसका कंसेंट नहीं है, आप उसको स्टूपिफाई करके, आप उसको ड्रग दे के उसके साथ रिलेशनशिप बना रहे हो, तो वो भी रेप कहलाएगा. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डेट रेप क्लियर है? व्हाट इज डेट रेप? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये 5वां पॉइंट था कि रेप कब कहलाएगा. अब 6ठा पॉइंट है कि व्हेन द गर्ल, if she is 18 year old, if she is below 18 years old and then also she is giving the consent, then it's also considered as a rape, and that rape is known as statutory rape. Statutory rape क्या है? For example, two person is in a relationship, they all are teenagers, 16-year-old, okay? Girl is giving consent to his boyfriend, yes, we can make physical relationship, and they both make by their consent, but that physical relationship will also considered as a rape in the eyes of law, because that girl is below 18 years of age. Got it? Yes, and that is ma'am. statutory rape. Yes, And ma'am. that term is known as statutory rape. आप अगर 18 ईयर से कम हो और अगर आप फिर भी कंसेंट से कर रहे हो, फिर भी वो रेप है. ओके, तभी तो इसी ये जो पॉइंट है ना, इसी पॉइंट्स पे बहुत सारी लड़कियां जो हैं फेक एलिगेशंस लगा देती हैं. इफ द मैन डजंट मैरी
तब ये जो 18 इयर्स की बिलो वाली लड़कियां होती हैं, फेक एलिगेशन लगाती हैं, तो वो लड़का जो है जेल में चला जाता है, क्योंकि वो 18 इयर्स बिलो होती हैं। वो कंसर्ट के साथ करती भी है, तो भी वो अगर पुलिस में कंप्लेन कर देती हैं तो वो रेप कहलाता है, क्योंकि वो 18 इयर्स से बिलो होती हैं। ठीक है। Now, seventh point is when she is unable to communicate consent. Okay, like she is physically impaired, or she's handicapped, she cannot able to speak, she's mentally disabled, or when you are attempting or doing something wrong with that female, then it's also come under rape. तो students, आपको समझ में आया कि किस किस circumstances में चीज को हम रेप बोल सकते हैं? पहला Yes, पॉइंट जो हमने ma'am. डिस्कस किया, द डेफिनेशन ऑफ रेप। रेप का डेफिनेशन क्या होगा, बता सकते हो कोई कि क्या क्या होता है जिसको हम रेप कंसिडर करते हैं? चलो बताओ। बताओ, अभी बताया ना आपको द डेफिनेशन ऑफ रेप, दैट व्हाट Mom, it कॉन्स्टिट्यूट्स is रेप। like a non-consensual act of sexual penetration or something like that. Yeah, sexual Is penetration, like penile penetration, or slightest penile penetration also, or applying of mouth in either part of vagina, mouth, uterus, anus without her consent, और या फिर उस महिला से भी वही सेम चीज करवाना जबरदस्ती, वो रेप का डेफिनेशन है। और वो रेप क्यों कहलाएगा, सरकमस्टांसेस क्या है, जो हमने 7 पॉइंट डिस्कस किए। फर्स्ट, अगर उसके विल के अगेंस्ट हो, उसके कंसेंट के अगेंस्ट है, उसका कंसेंट लिया जा रहा है बट उसको डरा धमका के। फोर्थ, अगर वो 18 ईयर से कम है फिर भी कंसेंट दिए तो भी वो रेप है, उसको ड्रग ड्रग में डाल के किया जा रहा है। और या फिर वो मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसके साथ किया जा रहा है, तो भी ये सब रेप में आता है। समझ में आ गया? Yes, ma'am. अब Ma'am. रेप के दो अब रेप के दो स्पेसिफिक एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, जो सेक्शन 375 में क्लैरिफाई करते हैं, जिसको हम रेप नहीं कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, पहला है, अ मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप। जब obviously when a woman delivers a child, so you all are aware how normal delivery happens, so that we will not consider as rape na, because when there is a male gynecologist, so it's his duty to deliver a child by normal delivery, so it will not constitute as a rape. It will constitute as a rape or not? Come on. No, ma'am. Obviously not. And if sexual intercourse by a man with his own wife who is more than 18 years of age, that will not considered as a rape. अगर दो लोग शादीशुदा हैं, अगर उसकी बीवी जो है 15 साल की है, 18 साल से कम है, तब वो अगर उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है तो वो रेप में जाएगा। अगर दो हस्बैंड वाइफ हैं and the wife is more than 18 years or 18 years old, then it will not consider as rape. Okay, and marital rape is exceptional, जिसको अभी भी कोर्ट में लेकर इसको प्रूफ करना जो है, इट्स नॉट पॉसिबल। डू यू थिंक दैट मैरिटल रेप जो है होता है, मैरिटल रेप, ये आप मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes, Yes, ma'am. हाँ, बट उसको कोर्ट में हम प्रूफ कर सकते हैं? No, नहीं ma'am. प्रूफ कर सकते हैं हम। अगर उसकी बीवी 18 साल से कम है तब ऑब्वियसली वो रेप कहला जाएगा, बट अगर उसकी बीवी 18 साल की है तब हम उसको नहीं प्रूफ कर सकते, वो अभी भी कोर्ट में चैलेंज है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है आपके। ठीक है, यहाँ पे सिनेरियो 1 है आपका, अ मैन फोर्सेस अ वुमन ही इज नॉट मैरिड टू इनटू सेक्सुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट हर एक्सप्लिसिट वर्बल रिफ्यूजल एंड फिजिकल स्ट्रगल। ठीक है, ये रेप क्यों है? दिस क्लियरली फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ रेप बिकॉज द एक्ट इज कमिटेड अगेंस्ट हर विल, इजंट इट और नॉट? क्योंकि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है उसने वर्बली अपने मुंह से मना किया है, तो ये उसके विल के अगेंस्ट है कि नहीं है? Ma'am, I have a Yes, ma'am. question. Yes, ma'am. हाँ, हेलो। मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। आपने जैसे बताया था कि मैरिड है और तब भी तो अगर विमेन मना करेगी तो फिर वो कैसे कर सकते हैं? तब तो रेप केस किया जा सकता है उस पर। बट वो लीगली मैरिड है। बट वर्बली वो बोल तो रही है ना, कंसेंट नहीं है उसका, देन ऑल्सो। हाँ, देन ऑल्सो, क्योंकि वो उसका हस्बैंड है, एंड व्हेन द फीमेल इज मोर देन 15 इयर्स, अगर उसकी बीवी जो है 18 साल की है, तब वो अगर कंसेंट नहीं दे रही है, तो भी बहुत सारे मैरिटल रेप्स होते हैं, हर दिन होते
होते हैं, कंसेंट नहीं हो फिर भी उसका हस्बैंड जो है जबरदस्ती रिलेशनशिप बनाता है, बट वहां पे हम कोर्ट पर, यही तो है ना पीछे लिखा हुआ था कि चैलेंज, अभी भी ये बिग चैलेंज है जो कोर्ट फेस कर रहा है, इसको प्रूफ करना कि वो मैरिटल रेप है या नहीं है, क्योंकि हम इसको नहीं प्रूफ कर सकते, क्योंकि वो इन आईज ऑफ लॉ, कोर्ट के लॉ, मतलब कोर्ट के नजर से लीगली दे बोथ आर मैरिड एंड दे बोथ आर एडल्ट मोर देन 18 ईयर्स ओल्ड, एंड इफ शी इज नॉट हर वाइफ, अगर वो उसकी बीवी नहीं होती तो ऑब्वियसली अगर वो रिफ्यूज कर रही है उसके कंसेंट के बिना है तो वो रेप होगा। अगर वो मैरिटल रेप है तो वो कैसे वहां पे प्रूफ करेगी कि मैंने अपना कंसेंट नहीं दिया? दैट्स द पॉइंट ना, दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग ट्रबल इन कोर्ट proving marital rape. Okay, how she will prove that she has given her consent or not to the husband? ओके Isn't it? यस मैम, ठीक है। हाँ। तो पहला वाला जो एग्जाम्पल था उसमें वो वर्बली रिफ्यूज की थी, फिजिकल स्ट्रगल भी दिखाई थी, तो ऑब्वियसली ये हमारा फर्स्ट जो सरकमस्टांस था कि वो अगेंस्ट हर विल या कंसेंट है, तो वो इसमें आ जाएगा। समझ में आया वाला एग्जाम्पल? यस Yes, मैम। ma'am. दूसरा एग्जाम्पल जो है, एक मैरिड मैन है, हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज वाइफ हु इज 25 ईयर ओल्ड इवन दो शी डज नॉट एक्टिवली वांट टू एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। वाइट्स अब यहाँ पे आपका सेकंड वाला है, इसको हम रेप क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये अंडर एक्सेप्शन है, अंडर सेक्शन 375। फर्स्ट वाला आपका रेप क्यों था, सेकंड वाला आपका जो क्वेश्चन था कि मैम उसकी वाइफ है लेकिन वो फिर भी मना कर रही है, फिर भी वो रेप क्यों नहीं हो सकता? तो वो क्यों नहीं हो सकता, इसका आंसर है यहाँ पे, क्योंकि ये सेक्शन 375 के अंदर एक्सेप्शन में है। द सिनेरियो फॉल्स अंडर द मैरिटल रेप एक्सेप्शन as the law currently stands in India. Sexual intercourse by a man with his own wife, provided she is not under 15 year of age, is not considered rape. आंसर मिल गया आपको? यस मैम। इंडिया में अभी भी ये लॉ है कि अगर उसकी बीवी जो है 15 ईयर्स से ज्यादा है, 18 ईयर्स की है, अगर उसका विल हो ना हो, they are engaging in physical relationship, that will not consider under rape and it comes under exception. Okay, समझ गए? Now the scenario 3. A 28-year-old woman goes on a date. Her date subtly slips a drug into her drink. As a result, she becomes heavily intoxicated and is unable to understand what is happening or to communicate any decently. The date that engaged in sexual intercourse with her. अब ये बताओ रेप है या नहीं? बताओ, हमने आपको सारे सर्कमस्टांसेस जो हमने डील किए थे उसी का एग्जांपल्स है आपको और अच्छे से समझाने के लिए। ये रेप है कि नहीं है? Yes, ma'am. It's rape. एंड व्हाई इट्स रेप? उसने वर्बली तो रिफ्यूज नहीं किया था यहाँ पर, तो उसका रेप कैसे है ये? बताओ जल्दी बताओ। Ma'am, you said ना date rape, like drugs देके then उसने अगर यहाँ उसके पर साथ हाँ बोलो। मैम लाइक अगर उसने ड्रग्स यहाँ- देके देन उसके साथ ट्राई हाँ। किया है ऐसा कुछ करने का, देन इट इज कंसिडर्ड एज रेप। यहाँ पर उस लड़की ने वर्बली मना नहीं किया है, मतलब जो है रिफ्यूज नहीं किया है, उसका कंसेंट है या नहीं है, बिल है, ये भी यहाँ पे नहीं पता, बट उसका कंसेंट यहाँ पे लिया गया है। कैसे लिया गया है? उसको इंटॉक्सिकेट करके, उसको अनसाउंडनेस करके, उसके ड्रिंक को स्टूपिफाई करके, तो ये रेप है। ठीक है, अंडर सर्कमस्टांसेस 6 या 5 जो हमने ऊपर पढ़ा था, इजंट इट? Yes, जो ma'am. बोलता है कि अगर आप किसी का कंसेंट ले रहे हो उसके बिना जानकारी के, उसके ड्रिंक को स्टूपिफाई करके या फिर उसके माइंड को अनसाउंड करके, तो भी वो रेप अंडर सेक्शन 375। okay? Now here is the fourth example. A 22-year-old woman and her boyfriend are in a relationship. One evening they have a heated argument. The boyfriend becomes insistent on having sex and the woman initially says no, but eventually relents due to emotional pressure and a desire to avoid further conflict. So why it's arguably not rape under a strict interpretation of current law, but highly problematic. This is tricky because the line between reluctant consent and absence of consent can be blurry. It's despite her initial no, she will eventually submits without physical force or explicit threat of harm, falling under point 3 of section 375. So it might be argued in a legal setting that consent, however unwillingly or emotionally coerced, was eventually given. तो यहाँ पर क्या केस है, कोई बताएगा?
Here the woman is 22-year-old age. यहाँ पे आप एज देख लेना, ओके? Ma'am, can you please repeat? Ma'am, your screen is not visible. Ma'am, you are not audible. मैम आपका माइक म्यूट है. मैम अनम्यूट करो. Now I'm audible. Yes, ma'am. Now it becomes mute. So तब से मैं जो पढ़ा रही थी वो आप लोग सुन रहे थे ना? नहीं मैम, नहीं सुनाई दिया. और पीपीटी विजिबल है? No, ma'am. पीपीटी में एक मिनट में फिर से visible अब है विजिबल? नो मैम. No, ma'am. अब विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, यस अब मैम. दिख रहा है कि आप मुझे लगा कि मैं विजिबल हूँ, ऑडिबल हूँ. ओके, तो हम लोग कहाँ थे, कहाँ से आपको नहीं समझ में आया? मैम सिनेरियो 4. Scenario 4. ओके, सो सिनेरियो 4 में जो है यहाँ पे एक 22-year-old फीमेल है एंड हर बॉयफ्रेंड, ओके, वो रिलेशनशिप में है. वन इवनिंग दे वेंट इनटू अ फाइट, ओके. After that fight, the boyfriend wants a sexual relationship, and firstly, the woman is emotional, So in emotion, she said no, but after sometimes in emotion, she said yes, and they make it out. So it will consider in rape or not? नो नॉट इन यहाँ पे आप रेप. No, age, ma'am. हाँ, cause that female age is 22-year-old, okay. अगर वो यहाँ पे 18 साल से कम होती तो वो रेप कहलाता, ठीक है? यस कहलाता कि नहीं कहलाता? मैम कहलाता. We'll move to the next slide. विजिबल है? Yes, ma'am. रेप का डेफिनेशन था सेक्शन 375, उसका जितना भी पनिशमेंट है आपका 376 में. तो इधर पनिशमेंट भी जो है आपका सेक्शंस में डिवाइडेड है, ए बी सी डी ऐसे करके, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हैं. तो पहला जो है आपका 376 ए, इसमें क्या है, इसमें क्या बोलता है? पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ अ विक्टिम. फॉर एग्जांपल, इफ अ मैन अटेम्प्ट्स रेप और डज रेप टू अ वुमेन, और फिर वो उसको बिल्कुल अधमरे या वेजिटेटिव स्टेट में लाकर छोड़ देता है, लाइक इन केस ऑफ निर्भया.
उसको वेजिटेटिव स्टेट में लाके छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? बताओ। आंसर, you all are aware about the Nirbhaya case. Ma'am, can you please repeat? मैम आपके ना नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहे हैं, इसलिए ना आप बीच बीच में ऐसे साउंड चली जाती है तो वो सुना ही नहीं दे रहा अच्छे से। Yes, ma'am. Okay, okay. So, punishment for rape, section 376A, okay, जिसमें ये बोलता है कि if a person attempts or does rape to a woman and he left that woman in a vegetative state or in a state of death, तो उस केस में 376A के अंदर Ma'am, again video was stuck. Section 376A के अंडर के बाद सुनाई नहीं दिया. I don't know why today's network is doing like this. Section 376A, okay, in which the male puts that female into a vegetative state or in a state of death after doing rape. तो उस वैसे केसेस में सेक्शन 376A के अंदर वो पनिशेबल है। तो मेरा क्वेश्चन था आपसे, जो निर्भया केस था उसमें कल्प्रिट्स के ऊपर सेक्शन 376A लगता कि नहीं लगता? मैम लगता। वेरी गुड। हाँ, फिर आप अब अवेयर हो निर्भया के साथ उन लोगों ने कैसा किया था, लाइक उसको वेजिटेटिव स्टेज मतलब बिल्कुल अधमरे स्टेज पे छोड़ दिया, ऑब्वियसली लगा होगा। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। और इसका क्या है आपका टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म जो कि 20 ईयर्स होगा या फिर टिल उम्र कैद होगा। ठीक है, 20 ईयर्स या फिर उम्र कैद और फाइन भी लगता है। ठीक है, Yes, ma'am. स्क्रीन इज विजिबल? यस मैम। अब है आपका सेक्शन 376B। ये सब एकदम आप लोग याद रखो, क्योंकि यूजीसी नेट में मैं बताती हूँ, यूजीसी नेट में ना मैच द फॉलोइंग कॉलम्स आके रहते हैं। सेक्शन 376A, सेक्शन 376B, सेक्शन 376C, D, E करके, और ऐसे शफल करके रखते हैं किसमें क्या है, उसको मैच करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, अगर आपके पास नोटबुक वगैरह है तो जस्ट नोट करते जाओ ऐसे, सेक्शन 376B क्या बोल रहा है, सेक्शन 376A क्या बोल रहा है। तो आपको यूजीसी नेट में तो लाइक सेक्सुअल ऑफेंसेस में रेप से तो ऑलवेज एक दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। रेप से आते हैं, फिर आपके क्या बोलती हूँ मैं, अननेचुरल सेक्स से आते हैं, आते ही हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो लाइक मस्ट है, ये तो आता ही है, तो नोट कर लो इसको। ठीक है, तो सेक्शन Yes, 3, ma'am. एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब सेक्शन 376B क्या बोलता है? सेक्शन 376B बोलता है व्हेन अ हस्बैंड इज अटेम्प्टिंग रेप टू हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन, उनके बीच में डिवोर्स हो रहा है और डिवोर्स के वक्त अगर हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाता है तो वो आपका रेप है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है ना मैरिटल रेप, जो हमने कोर्ट का जहाँ पे वो चैलेंज है। तो यहाँ पे अगर दो लोगों के बीच में डाइवोर्स हो चुका है, डाइवोर्स की बात चल रही है, दे आर अंडर डाइवोर्स, सेपरेट है वो, अगर फिर वो हस्बैंड जो है वो कर रहा है, मतलब अपनी वाइफ को फिजिकल रिलेशनशिप में फोर्स कर रहा है, तो वो रेप कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसकी सजा क्या है? 2 साल या 2 साल से ज्यादा बढ़ सकती है और फाइन लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो नॉन कॉन्सेंशुअल सेक्स है, और यहाँ पे अब वो जो फीमेल है वो उसकी लीगली वाइफ नहीं है क्योंकि डिवोर्स हो चुका है। गॉट इट? यस Yes, मैम। ma'am. आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब है आपका थर्ड वन, सेक्शन 376C। अब सेक्शन 376C क्या बोलता है? रेप बाय पर्सन इन अथॉरिटी। सेक्शन 376 में उन लोगों को पनिशमेंट मिलेगा अगर कोई पर्सन अथॉरिटी में है और वो रेप करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज डॉक्टर, सो डॉक्टर है तो वो एक अथॉरिटी में है, वो एक बहुत बड़ा पोस्ट है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट?
Yes, ma'am. I am an assistant professor, so I am in an authority or not? Yes, ma'am. Yes. So definitely, if a person doing rape or any unlawful act or sexual or assault to a woman who is in authority, that will consider under rape. For example, if a doctor does to his patient, obviously these cases are now very famous. How one can trust doctors also. A police is attempting rape or doing rape in custody of a prisoner, woman prisoner. Then assistant professor is attempting rape to students. So these all will be considered under section 376. Then they will get punished under section 376. And the punishment is 10 years or more than 10 years, but not less than 10 years, and which may be extended to umar kaid, imprisonment to life and with fine also. Okay. क्योंकि यहाँ पर जो है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का बात भी होता है. यू ऑल ट्रस्ट योर टीचर्स, यू ऑल ट्रस्ट द डॉक्टर whom you visited. So when that person who is an authority will does this, तो वहां पे ट्रस्ट जो है वो भी टूटता है, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी होता है. ठीक है. तो यहाँ पे 10 साल या 10 साल से ज्यादा या फिर उम्र कैद भी होगा और लायबल ऑफ फीस मतलब फाइन भी देना होगा उनको. समझ गए सेक्शन 376 क्या बोलता है? Yes, ma'am. नाउ सेक्शन 376D विजिबल है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. गैंग रेप, जो निर्भया के साथ हुआ था वो गैंग रेप था, आपको पता है. Yes, ma'am. तो उस पे 376D भी सेक्शन लगा. ठीक है. गैंग रेप क्या होता है? जहां पे एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं इन दैट हीनियस क्राइम, इन दैट रेप ऑफ वुमेन, उसको हम गैंग रेप बोलते हैं. ठीक है. यहाँ पे आपको पनिशमेंट जो है वो है आपका 20 इयर्स या 20 इयर्स से ज्यादा या फिर उम्र कैद होती है और उसको फाइन भी देना पड़ता है. ठीक है. समझे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, अब इसी का है सेक्शन 376D का A. ठीक है. इसका सब सेक्शन हो गया गैंग रेप ऑन अ वुमेन अंडर 16 इयर्स ऑफ एज. अगर गैंग रेप हो रहा है किसी टीनेजर के साथ, जो लड़की जो है 16 ईयर से कम है, शी इज अ चाइल्ड. ओके. सो यहाँ पर क्या मिलेगा उसको? सजा. यहाँ पे उसको सजा मिलेगा 20 ईयर से तो कम नहीं होना चाहिए या फिर उम्र कैद होना चाहिए. ठीक है. विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पर्सन. जो भी उसका नेचुरल लाइफ है, जब तक वो नेचुरल डेथ नहीं मिलेगा उसको, तब तक वो जेल में ही रहेगा उम्र भर, जिंदगी भर. ठीक है. उसको फाइन भी मिलेगा. ठीक है. और अगर उन केसेस में अगर विक्टिम की डेथ हो जाती है तो डेथ पेनल्टी मिलेगी. ठीक है. Yes, समझे? ma'am. हाँ, ma'am. Yes, ma'am. अगर विक्टिम की डेथ हो जाती है तो फिर डेथ पेनल्टी भी मिलेगा. तो ये था आपका सेक्शन 376D का A. ये सब पनिशमेंट्स है. ओके. अब है आपका D का B. ओ, D का B भी है. विजिबल है? Yes, ma'am. सेक्शन 376DB जो है बोलता है अंडर 12 इयर्स ऑफ एज. ओके. ये मैं बहुत एलाबोरेट करके बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ. ठीक है. शायद बहुत लोग ऐसा नहीं पढ़ाते होंगे या नहीं बताया होगा. मतलब अगर महिला जो है, लड़की जो है 12 साल से कम की है, तो वो सेक्शन 3, उसके साथ कोई गैंग रेप हो रहा है तो उसको जो कल्प्रिट है उसको अंडर सेक्शन 376DB के अंदर उसको सजा मिलती है. और उसकी सजा क्या होगी? वही 20 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ पेनल्टी. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ सेक्शन 376E. अब हमारा आया सेक्शन 376E. सेक्शन 376E क्या बोलता है? रेप का रिपीट ऑफेंडर्स जो होता है, लाइक लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल. पर्सन A, he rapes in 2011 December. Okay. Then he rapes in 2012 January also. then फिर वो बच के निकल गया, फिर वो बार बार वो रेप करता है, तो ही इज अ रिपीट ऑफेंडर. रिपीट ऑफेंडर का मतलब क्या है? जो एक क्राइम को बार बार रिपीट करता है. ठीक है. तो जब वैसे ऑफेंडर्स को सेक्शन 376E के अंदर सजा मिलता है और उनको सजा मिलता है उम्र कैद. ठीक है. या फिर डेथ पेनाल्टी. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
है मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि Ma'am, इन केसेस excuse me. ऑफ, हाँ जी, मैम आई हैव अ क्वेश्चन कि जो अभी आपने कहा ना कि बार बार क्राइम करता है, तो उससे तो सीरियल किलर्स भी कहते हैं, तो वो भी इसके अंडर आते हैं? यहाँ पे रेप की बात हो रही है। सीरियल किलर्स जो होता है, सीरियल किलर्स का अलग अलग मॉडस ऑपरेंडी होता है। हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड मॉडस ऑपरेंडी ना? तो यस सीरियल मैम। किलर जो होते हैं वो बहुत चीज में इन्वॉल्व होते हैं। सीरियल किलर पहले स्टॉक करते हैं, तो स्टॉक का अलग सेक्शन, असॉल्ट का अलग सेक्शन, वो लाइक वो रेप करते हैं। वो कभी कभी नेक्रोफेजिया का केस आपने टेड बंडी के केस में सुना होगा, तो उनपे वो सेक्शंस भी लगेगा। वो रेप करते हैं तो उनपे रेप का सेक्शन भी लगता है, प्लस वो मर्डर कर देते हैं तो उनपे मर्डर का भी सेक्शन लगता है, तो उनपे भी बहुत सारा सेक्शन लगता है। सीरियल किलर का तो ऑब्वियसली बहुत ही रिगरस पनिशमेंट होता ही होता है। गॉट इट? और यहाँ पे यस पर्टिकुलरली हम मैम। रेप का बात कर रहे हैं, जो कि रिपीट ऑफेंडर रेप के हैं। ठीक है, यहाँ पे रेपिस्ट जो है सिर्फ रेप कर रहा है, ना कि वो स्टॉक कर रहा है, ना कि उसका कोई मॉडस ऑपरेंडी। ओके, समझ में आया? यस मैम, थैंक यू। ओके, अब यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम क्या से होगा? लाइक फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन हम क्यों करते हैं? लाइक रेप केसेस आर अराइजिंग डे बाय डे, यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट। सो इन रेप केसेस और एनी सेक्सुअल असॉल्ट केसेस व्हेन वी विजिट क्राइम सीन, तो एज अ फॉरेंसिक साइंटिस्ट और एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट, आप कैसे, आप, मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, आप सब फॉरेंसिक के स्टूडेंट्स हो, के यहाँ पे सारे लोग एमएससी बीएससी के ही होंगे, इजंट? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो अगर आप एक रेप केस के सीन ऑफ क्राइम पे जाते हो, तो आप एज अ साइंटिस्ट क्या क्या कलेक्ट करोगे, क्या क्या एविडेंस वहां से लोगे, कैसे एग्जामिनेशन करोगे, मुझे बताओ थोड़ा। लाइक मैम अगर सीमन सैंपल है तो वो हम कलेक्ट कर सकते हैं उधर से। ओके, फर्स्ट माय क्वेश्चन, पहले आप क्या सीमेन कलेक्ट करोगे? अगर वहां पे कोई विक्टिम है, आप पहले उसको असिस्ट नहीं करोगे? यस मैम। यस मैम। तो फर्स्ट मेडिकल ऑफ ऑल कोई भी असिस्टेंस फर्स्ट क्राइम, प्रोवाइड हाँ, करेंगे। पहले कोई भी क्राइम हो, कोई भी सीन ऑफ क्राइम हो, फर्स्ट आपका स्टेप है एज एन आईओ और एज अ फोरेंसिक साइंटिस्ट, आप जो विक्टिम है उसको मेडिकल असिस्टेंट देना है आपको। अगर वो अलाइव है, वेजिटेटिव स्टेट में है, तो इमीडिएटली सेंड हर टू द हॉस्पिटल फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर आप अपना फर्दर जो क्राइम सीन सिक्योर करना और कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन तब आप करोगे, सीमेन कलेक्ट करना, हेयर कलेक्ट करना, जो भी है। ठीक है, चलो और बताओ। ब्लड सैंपल भी मिल सकता है। क्या और क्या क्या मिल सकता है हमको सेक्सुअल असॉल्ट वाले केसेस से? मैम स्किन सेल्स। हाँ, स्किन सेल्स लाइक विमेन के उससे मिलेगा आपको, नेल फिंगर नेल से क्लिपिंग्स। नेल्स मिलेगा। नेल्स में नेल्स इसमें। चलो मैं यहाँ पे एक बात बताती हूँ आपको। रेप, जब कोई रेप होता है ना, तो वो रेप है, वो हम कैसे प्रूव करते हैं कि वो रेप है? ठीक है, तो प्रिजम्पशन एंड प्रूफ कैसे होगा? देखो, इफ अगर मेरे कंसेंट से हो रहा है तो मैं रेजिस्टेंस नहीं शो करूंगी अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, वो बहुत ही नॉर्मल नेचुरल होगा। अगर वो रेप हो रहा है तो आई विल शो रेजिस्टेंस। ठीक है, मैं चिल्लाऊंगी, शोर मचाऊंगी, आई विल बाइट दैट पर्सन, आई विल लाइक मैं उसको धक्का दूंगी, मतलब स्क्रैचेस आएंगे उसके, मतलब अगर किसी महिला के साथ रेप हो रहा है, वो अपने आप को बचाने के लिए ऑब्वियसली जो फीमेल्स होती है ना, वो फिंगर स्क्रैच करती हैं बैक पे। तो अगर मेल के बैक पर अगर स्क्रैच आपको मिल रहा है, मेल्स के सर्टन पार्ट्स पे अगर आपको चोट दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो ऑब्वियसली वो रेप है, isn't it? वो फीमेल चिल्लाएंगी, अपने आप को बचाने का कोशिश करेंगी। रेजिस्टेंट मार्क्स, हेजिटेशन एंड रेजिस्टेंस मार्क आपको दिखेगा फीमेल्स के सर्टन थाइस पे, बॉडीज पे, वजाइना पे आपको चोट दिखेगा, तो वो ऑब्वियसली वहां पे रेप है ये। ठीक है, अगर कोई बोलना चाहेगा कि नहीं ये रेप नहीं है, तो फिर वो बेवकूफ है। ठीक है, क्योंकि कंसेंट प्रूफ है या नहीं है, इसका मेन साइन, जो मेन साइन है वो यही है कि वहां पे फीमेल ने रेजिस्ट किया है, रेजिस्टेंस साइन आपको मिल रहा है, मीन्स वो रेप है। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अगर अगर मेल फीमेल दोनों की मर्जी से हो रहा है, तो थोड़ी कोई रेजिस्टेंस साइन होगा ना, लड़की चिल्लाएगी ना, काटेगी ना, उस लड़की के बॉडीज पे आपको स्वैप या आपको कुछ चोट दिखने को मिलेगा, नहीं ना, ऑब्वियसली नहीं। ये सब आपको साइंस जो है वो आपको रेप में ही दिखने को मिलेगा। ठीक है, अब मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होता है इसका? पहला जो है इनिशियल इंटरेक्शन एंड कंसेंट होगा। जो ऑब्वियसली जो फीमेल होती है ना, आफ्टर रेप
PTSD आपने सुना है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर? यस मैम। Yes, ma'am. ऑब्वियसली वो फीमेल जो है डिप्रेशन में चले जाती है। तो कुछ सर्टेन लॉज हैं, आप विदाउट उनका कंसेंट जो है आप उनसे अजीब अजीब सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ये होता था, फीमेल का जब रेप होता था वहां पे तो उसको मोलेस्ट किया ही जाता था, प्लस उसको हॉस्पिटल में टू फिंगर टेस्ट होता था, याद है? सुन रही हूँ ना, कुछ क्लास चल रही, कुछ आफ्टर बता रही निर्भया हूँ। टू यस फिंगर टेस्ट मैम। बंद किया गया है। टू फिंगर टेस्ट के साथ भी उसके साथ रेप ही हुआ, ठीक है, उसको मोलेस्ट ही किया गया। तो डॉक्टर्स ने अजीब अजीब सवाल पूछ के उसको वहां पर ह्यूमिलेट किया, पुलिस ने अजीब अजीब सवाल पूछकर उसको ह्यूमिलेट किया, कोर्ट ने अजीब अजीब सवाल पूछकर उस विक्टिम को पूरा डिप्रेस किया। तो वो विक्टिम जो है सिर्फ उसके साथ एक जगह पे रेप नहीं हो रहा है, उसके साथ सारा सोसाइटी मिलकर रेप कर रहा है। तो आफ्टर निर्भया बहुत सारे हमारे जो लॉज हैं उसमें चेंजेस आए हैं, जिसमें से पहला था आपका जो टू फिंगर टेस्ट था उसको हटा दिया गया कंप्लीटली, ठीक है, गॉट इट? उसके बाद था कंसेंट लेना। अगर फीमेल को ये वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, वो नहीं देगी, उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं होगा, पहले उसके कंसेंट फॉर्म में साइन कराया जाएगा कि वो कंफर्टेबल है या नहीं है, ठीक है। पब्लिकली उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उसके लिए एक स्पेशल रूम बनाया जाएगा, वहां पे अथॉरिटी वाले पीपल होंगे, मजिस्ट्रेट होंगे, पुलिस होंगे, डॉक्टर होंगे, फीमेल नर्सेस होंगे, सब कुछ उनके सामने होगा, ठीक है, समझे? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Okay. फिर जनरल एग्जामिनेशन कैसे होगा? जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब उसकी बॉडी का जो भी फिजिकल एग्जामिनेशन हो, या फिर जो भी आपका उसका इमोशनल या बिहेवियरल स्टेट है उसका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। आप मतलब फीमेल अगर विक्टिम अगर अलाइव है तो पहले उसका पहला स्टेप जो है कंसेंट लिया जाएगा, मजिस्ट्रेट नर्स सबके सामने, एक मतलब अलग से एक रूम में, ठीक है, एक अच्छा सा वेल बीन एंड सेफ माहौल में, ठीक है। फिर उसका जनरल असेसमेंट लिया जाएगा, जैसे कि उसका मेंटल कंडीशन, इमोशनल कंडीशन, बिहेवियर वगैरह सब कुछ नोट डाउन किया जाएगा। फिर उसका पल्स, बीपी वगैरह सब कुछ चेक चेक किया जाएगा, टेम्परेचर, फीवर वगैरह सब कुछ। उसके बाद उसके एक्सटर्नल इंजरीज हम चेक करेंगे। एक्सटर्नल इंजरीज कहाँ कहाँ मिल सकती हाँ। हैं रेप केसेस में, कोई बताएगा? स्टूडेंट्स, am I मैम audible? फेस पे, या और आउटर एरिया वजाइना के उस पे। ओके, रेप में जो फीमेल का जो एक्सटर्नल इंजरीज होगा वैसे फेस पे मिलेगा, ब्रेस्ट पे मिलेगा, थाइस पे मिलेगा, वजाइना पे मिलेगा, ठीक है। यस मैम। बाइट मार्क्स मिलेगा, सर्टेन लड़के के ऊपर भी वाइट मार्क्स मिलेगा, यहाँ पे जो विक्टिम जो कल्प्रिट होगा ना उस पे भी वाइट मार्क्स हमको मिलेगा। बहुत सारे केसेस में फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं, जो कि बहुत ही वाइटल केस है। तो फॉर एग्जाम्पल आरजेकर मेडिकल कॉलेज रिसेंट केस है यहाँ कोलकाता वाला, इसके केस में फ्रैक्चर भी था, एंड दैट यस वाज अ मैम। गैंग रेप केस। ब्लीडिंग, अगर बहुत ही रिग्रेस सेक्सुअल केस है, बहुत ही रिग्रेस रेप है, तो उसमें ब्रेकेज ऑफ हाइमन एंड ब्लीडिंग भी होगा, आपको दिखेगा, ठीक है। जनरल रेप केसेस में ब्लीडिंग दिखती है, अगर वो फीमेल ऑब्वियसली शी इज अ वर्जिन, तो वहां पे आपको ब्लीडिंग दिखेगा, ठीक है। कोई भी फॉरेन मटेरियल आपको दिख रहा है, लाइक डर्ट, स्टेन, लाइक हेयर, आप जब पता है एडमंड लोकार्ट का वो जो था लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज। लॉ ऑफ एक्सचेंज ऑब्वियसली, तो व्हेन द टू बॉडीज आर कमिंग इन कांटेक्ट तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे भी एक्सचेंज होंगी। मेल का हेयर जो है फीमेल के हेयर्स में चेंज होगा, तो प्यूबिक हेयर ऑफ मेल जो है वो फीमेल्स के भी पार्ट से आपको देखने के मिलेंगे। हेड हेयर जो है मेल का वो फीमेल के बॉडी में आपको देखने का मिलेगा। फीमेल्स का जो हेयर्स है वो मेल के बॉडी में आपको दिखने का मिलेगा। सेमेन जो है अगर उसने इंसेमिनेट किया है फीमेल के अंदर तो स्वैब्स में आपको सेमेन मिलेगा, ब्लड मिलेगा, ट्विग्स मिलेगा, डर्ट मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। फिर आपको फीमेल का आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी है वो भी नोट करना है, कहीं कोई मोल है, स्कार है वगैरह वगैरह है कि नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। Yes, ma'am. क्लास अच्छी लग रही है या बोरिंग लग रही है? अच्छी लग रही है। मैम इट इज सो इंटरेक्टिव। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इसको इंटरैक्टिव बनाओ, आप लोग भी बोलो। अब है हमारा फेज 3। पहला फेज क्या था, चलो रिवाइज करो। पहला फेज था कंसेंट लेना, दूसरा फेज था जनरल एग्जामिनेशन करना,
तीसरा फेज है जेनाइटल एग्जामिनेशन करना। अब हम जेनाइटल पार्ट, ऑब्वियसली फीमेल का जेनाइटल पार्ट वजाइना, उसका एग्जामिनेशन और वहां से हम एविडेंस कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे डॉक्टर एंड नर्सेस का काम है, बट मजिस्ट्रेट या फिर कोई पुलिस अथॉरिटी भी वहां पे रहेगा, ठीक है। एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया में क्या क्या आता है? लेविया मजोरा, माइनोरा, क्लिटोरिस, हाइमेन वगैरह, ये सब का हम देखेंगे कि वहां पे कोई साइन है या नहीं है इंजरीज की, ट्रॉमा की, स्वेलिंग या रेडनेस। ऑब्वियसली रिगरस रेप केस होगा तो क्लिटोरिस का रेडनेस होना, वहां पे स्वेलिंग होना इज वेरी कंपल्सरी, इजंट इट? वो बहुत ही जेन्युइन है कि रिगरस रेप में क्लिटोरिस या वल्वा आपका जो है, लैबिया मेजोरा वगैरह है, वहां पे रेडनेस होगा, ब्लीडिंग आएगी, स्वेलिंग हो जाएगा, ठीक है। डिस्चार्ज होगा, ब्लीडिंग होगा, आपको सीमेंट दिखने को मिलेगा यहाँ पे, या फिर कोई भी फॉरेन मटेरियल दिखने को मिलेगा। अगर उस जो कल्प्रिट है, अगर उसने बहुत कुछ इंसर्ट करने की कोशिश की हो तो उसका भी कुछ एक्सचेंज आपको वहां पे मिलेगा। प्यूबिक हेयर्स मिलेगा, कल्प्रिट का प्यूबिक हेयर मिलेगा वहां पे, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे हाइमेन का कंडीशन क्या है, ठीक है। हाइमेन का कंडीशन हम क्या चेक करेंगे? अगर वर्जिन लड़की, अगर वो लड़की वर्जिन है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका हाइमेन ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होगा कि नहीं होगा? यस मैम। इंडिया में या फिर कहीं भी हम देखते हैं तो हाइमन को हम कंसिडर करते हैं ना, साइन ऑफ सेक्स और नॉट। अगर हाइमन है तो द गर्ल इज वर्जिन, अगर हाइमन नहीं है तो मीन्स उसने वर्जिनिटी खो दी है। यही इंडिया में मानते हैं ना, या फिर हमारे देश में या फिर कहीं पे भी यही कंसिडर किया जाता है फीमेल को लेके, isn't it? तो अगर वो लड़की जो है टीनेजर है, वो वर्जिन थी, अगर उसका हाइमन ब्रेक हो गया है तो ऑब्वियसली ये प्रूव्ड है कि वो रेप है ही वहां पे, है ना। एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी उसको वहां पे, एक्सेसिव डिस्चार्ज एंड ब्लीडिंग होगा। तो इंटरनल जेनेटल एग्जामिनेशन में हम कैसे करेंगे? पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे हम। द सर्वाइवर इज मैरिड और पैरस। मैरिड मतलब ऑब्वियसली उसका हाइमन नहीं होगा, मैरिड वुमेन हो या फिर पैरस वुमेन मीन्स जो ऑब्वियसली डिलीवर कर चुकी है चाइल्ड, ठीक है। यहाँ पे पैरस का मतलब होता है जो ऑब्वियसली यूट्रस में उनके बेबी आ चुका है, उनका यूट्रस जो है वर्जिन नहीं है, ठीक है। द वुमेन हु आर नॉट मैरिड और वी आर, हमारा यूट्रस वर्जिन है, but the women who are married or who have delivered the child, they are parous women, their uterus is not virgin, okay? So उनके केसेस में अलग तरीके से टेस्ट होता है, उनके हाइमन के केसेस में हम अलग अलग से टेस्ट करते हैं। लाइक 6 o'clock डिग्री का जो बनता है ना हाइमन चेक करने में, ये क्वेश्चन नेट यूजीसी नेट में आया था कि इन मैरिड वुमेन के केसेस में जो हाइमन होता है उसका जो टीयरिंग जो होता है वो किस डिग्री में चला जाता है। तो था बी शेप, 6 o'clock, तो 6 o'clock एंड वी शेप ये आप याद रखना, ओके। उस केसेस में जो यस मैम। वजाइना की टीयरिंग होती है ना वो आपके 6 o'clock और वी शेप में होता है, और कुछ मतलब हील करने के बाद फिर वो यू शेप में बन जाता है हाइमन, ठीक है, समझे? यस मैम। क्योंकि ऑब्वियसली आफ्टर रेप वजाइना को हील करने में टाइम लगेगा, ठीक है, हाइमन को हील करने में टाइम लगेगा। वो 6 o'clock डिग्री या फिर वी शेप में जब वो टीयर होता है, वो टीयर होगा कुछ दिन के बाद, जब वो हील होगा तो फिर वापस वो यू शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो मैरिड वुमेन के केसेस में हम ये चेक करेंगे। फिर डिफरेंट डिफरेंट हाइमन चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट या टूल्स भी होते हैं। ग्लास रॉड होता है या फिर मेटल का रॉड हुआ रहता है ऐसे, आपने देखा होगा वो फिजिक्स में हम जो पढ़ते थे ना, क्या तो नाम था उसका, हाइमिनल एज उसको बोलते हैं, उससे उसको इंसर्ट करके हाइमन चेक किया जाता है, ठीक है। ये सब पता था आपको? नो मैम। नो मैम। हाँ, तो हाइमन वगैरह चेक किया जाता है, ये सब मतलब मेडिकली मतलब हॉस्पिटल्स में फीमेल का ऐसे हाइमन चेक किया जाता है। हाइमिनल एजेस से उसमें कैसा होता है, एक लंबा सा ऐसे स्टिक होता है और नीचे आपका 6 mm का ग्लास का रॉड होता है या फिर मेटल का रॉड होता है, वो इंसर्ट करके फिर हाइमन चेक किया जाता है। अब है आपका स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। अब हमारा है एविडेंस कलेक्शन हम कैसे करेंगे। तो हम क्लोथ कलेक्शन करेंगे ऑब्वियसली। फीमेल का जो भी क्लोथ है हम कैसे कलेक्ट करते हैं। फीमेल है, विक्टिम है, उसको हम एक व्हाइट कलर के बड़े से शीट पे खड़े कराते हैं, ठीक है। क्यों खड़े कराते हैं? फिर उसको वहां पे बोलते हैं खड़े हो और अपने कपड़े मतलब, और फिर उसका कपड़ा वहां पे हम खोलते हैं
और जो भी उस कपड़े में आपका हेयर है, फाइबर है, जो भी कुछ होगा आपका ट्रेस एविडेंस, वो सब कुछ व्हाइट शीट पे गिर जाएगा। ठीक है। अगर हम ऐसे ही उसको बोलेंगे कपड़े खोल के दे दो, तो जो भी उसमें ट्रेस एविडेंस है उसके बेचारी के कपड़े में, हेयर से, प्यूबिक हेयर से फाइबर एक्सचेंज हुआ है, वो सब कुछ तो ऐसे ही मतलब कंटामिनेट हो जाएगा, फिर भुला जाएगा। इसीलिए उसको व्हाइट शीट पे खड़ा कराया जाता है, वहां पे उसकी कपड़ों को खोला जाता है ब्रश करके, कि जो भी आपका हेयर एविडेंस मिलेगा, ट्रेस एविडेंस है, ग्रोथ है, मतलब फाइबर है, कुछ वो पेपर में गिरेगा, तो जिससे हमारे पास एविडेंस आ जाएंगे। ठीक है। और अगर और जो भी अगर क्राइम सीन पे कोई विक्टिम का क्लोथ अगर मिल रहा है, तो उसको एज इट इज पैक करके एफएसएल या फिर भेज दिया जाता है। हेयर सैंपल्स को हम कलेक्ट करते हैं, बॉडी के ह्यूज हेयर, आपके प्यूबिक हेयर्स, मेल का प्यूबिक हेयर और फीमेल का प्यूबिक हेयर जो भी है, वो सब कुछ हम 10 to 20 ईच कलेक्ट करते हैं। ठीक है। स्वैब्स हम लेते हैं, वजाइनल स्वैब्स, ऑब्वियसली वजाइना पे हम स्वैब्स क्यों लेते हैं? पता करने के लिए कि सिमन है या नहीं, उसने इंसेमिनेट किया कि नहीं किया। ठीक है। वल्वा से हम लेंगे, लाविया मजोरा से हम करेंगे। बहुत बार जो होता है बकल क्वाइटस होता है, तो फीमेल के बकल एरिया से भी हम स्वैब लेते हैं कि वहां पे भी सीमेन है या नहीं। ठीक है। सीमेन कलेक्शन करेंगे, फिर फीमेल का यूरिन कलेक्शन करेंगे। आप सबको पता है कि हमारे फीमेल बॉडी में सीमेन जो है 72 आवर्स तक जिंदा रहता है, उसके बाद वो मर जाता है। 72 आवर्स के अंदर हमको फीमेल का जो है टेस्ट करा लेना है, पता करने के लिए कि उसका रेप अटेम्प्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। समझ में आया? यस यस मैम। मैम। 72 आवर्स तक ही रहता है ना बॉडी में। यस मैम। फिर हम डॉक्यूमेंटेशन, आप कोई भी क्राइम सीन हो वहां पे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि नहीं करते? तो यहाँ पे भी आपका वैसे ही होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, पूरा कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, फिर सिक्योर करके चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करके वो एफएसएल जाता है। फिर एफएसएल जाएगा, फिर वो पहले बायोलॉजी लैब से गुजरते हुए सेरोलॉजी में हो जाएगा, फिर सेरोलॉजी से डीएनए में जाएगा, पता करने के लिए दैट हु इज द कल्प्रिट। है ना? गॉट इट? यस मैम। यस मैम। इस तरीके से हम एग्जामिनेशन करते हैं रेप विक्टिम का। अब मेडिकल ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप कैसे होता है? उनकी इंजरीज का ट्रीटमेंट होगा, जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव देना है, अगर 72 आवर्स के वो प्रेगनेंसी का चांसेस हो सकता है, अगर उनका वो ओव्यूलेशन पीरियड था या जो भी था, तो उस हिसाब से उनको कॉन्ट्रासेप्टिव दे देना है कि वो कंसीव ना करें। ठीक है। फिर उनका लाइक पीएसटीडी जो है वो प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट होते रहेगा, लाइक उनकी काउंसलिंग चलती रहेगी, उनको लाइक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मिलता रहेगा, उनका फॉलो अप केयर होता रहेगा, क्योंकि ज्यादातर जो रेप विक्टिम होती है सुसाइडल हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए उनका फॉलो अप केयर भी इम्पोर्टेंट है। समझे? और प्लस सोसाइटी को तो आप जानते ही हैं कैसे, अगर कोई फीमेल यहाँ पे ठीक होने का कोशिश भी करेगी तो सोसाइटी उसको ठीक होने देगा। अब ये तो आपको पता है, ये डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग सबको पता है ना। फॉरवर्ड होगा, चेन ऑफ यस मैम। कस्टडी यस होगा, फिर मैम। एफएसएल जाएगा। ठीक है। तो लेट्स स्किप दिस और आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन जो है आप देख लो थोड़ा, सेक्शन 164A क्या बोल रहा है? मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप सर्वाइवर विद इन 24 आवर्स ऑफ रिसीविंग द कंप्लेंट विद द सर्वाइवर्स कंसेंट। सेक्शन 164A में जो रेप विक्टिम है उसका 24 आवर्स के अंदर उसके कंसेंट से आपको एग्जामिनेशन करवा लेना है। ठीक है। हेलो? यस मैम। यस यस मैम। मैम। फिर जो मैंने आपको बताया था 2 फिंगर टेस्ट जो है अब वो प्रैक्टिस नहीं होती है, क्योंकि उसमें प्राइवेसी डिग्निटी की बात आ जाती है। ठीक है। और आफ्टर निर्भया कांड, यूनियन हेल्थ ऑफ मिनिस्टर्स जो है बोला था कि जितने भी पब्लिक हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, कोई भी रेप विक्टिम होगी उसको फ्री में असिस्टेंस मिलना है विदाउट एनी पुलिस रिक्वेजिशन। तुरंत उसको फर्स्ट केयर देना है। ठीक है। नॉलेज में होनी चाहिए। ओके। अब आया हमारा, हेलो? यस मैम। हाँ। अब आपका दूसरा इंसिस्ट है। इंसिस्ट का मतलब क्या होता है? नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस में हमने रेप अभी खत्म किया है। इंसेस्ट का मतलब क्या है? Having sexual relationship in blood relation or close relation is known as incest. Okay, like between brother and sister, mother and son, father and daughter, and it's
not a common practice in India, although, but this is considered as incest. Got it? Yes, ma'am. और the third है आपका adultery. Adultery क्या है? If a person is married and if the person is having sexual relationship with some other person's wife or some other person's husband, is known as adultery. ठीक है? Cheat करना, affair करना. Got it? Yes, ma'am. Incest देखो यहाँ पे between a mother and a son, Oedipus complex, father and a daughter, Electra complex, brother and sister, Sarah complex. ये सब आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा. ठीक है? अब है आपका अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस. अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस क्या है? तो बताएगा. अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस जो नेचर के अगेंस्ट है. नेचर ने क्या बताया है? जो नेचुरल सेक्सुअल प्रोसेस है हमारा, वो नेचुरल सेक्सुअल प्रोसेस क्या है? For babies, we do just intercourse between male and a female, the insertion of penis into the vagina. That's the order of nature, order of natural order of sex ना. But जो unnaturally हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, which is against the nature, ठीक है, वो सारा सेक्स जो है आपका unnatural sexual offenses में आएगा, which is punishable under 377 और IPC. Okay? हेलो? यस मैम। Yes, ma'am. समझे? तो अननेचुरल में आपका क्या क्या आता है? पहला आपका सोडोमी. व्हाट इज सोडोमी? इट्स एन एनल इंटरकोर्स. एनल इंटरकोर्स बिटवीन टू मेल और अ फीमेल और अ मेल. ठीक है? और सोडोमी जो है वो सोडोम नाम का एक जगह था, वहां एक टाउन था, वहां पे ज्यादा प्रैक्टिस होता था, इसलिए इसका नाम सोडोमी रखा है. गॉट इट? ओके मैम। समझे कि नहीं समझे? और इसको हम इसका दूसरा नाम लिख लो. क्या पता एग्जाम में आ जाए. बगरी. इसको BUGGERY भी बोलते हैं. सोडोमी, बगरी भी बोलते हैं. स्पोर्ट्स एंड एनल इंटरकोर्स. ठीक है? लाइक इसमें एनी डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन अटेम्प्ट और जस्ट इनटू द एनल मार्जिन, अगर एनल के मार्जिन पे भी गया है या फिर अंदर ही तक गया है, तो वो सब कुछ आपका सोडोमी के अंदर, नेचुरल सेक्स के अंदर पनिशेबल है अंडर 377. ठीक है? और ये जहां से शुरू हुआ था, सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस होता था, ये सोडोम नाम की एक टाउन पर. व्हाट इज बेस्टालिटी? बेस्टालिटी मीन्स जो बहुत ही आजकल सुनने में आ रहा है केसेस, दैट द मैन इज हैविंग intercourse with a cow, goat, etc., dog. So sexual intercourse between a male and a lower animal like goat, cow, sheep, dog. So ये क्या है? What is this? कोई एक फिट ऑफ माइंड जो सेन पर्सन है वो ये सब कर सकता है क्या? आप खुद से सोच के बताओ, जो कि मेंटली फिट है, मी एंड यू, आप ऐसा कभी सोच भी सकते हो? आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है, हैविंग सेक्स विद एन एनिमल? नो यस और नो? मैम। ऑब्वियसली. तो वो जो पर्सन है वो ऑब्वियसली ही साइको, ही इज मेंटली अनस्टेबल, तभी वो ये सब हरकत कर रहा है आउट ऑफ लस्ट. तो सेक्स जो है, मतलब इंटरकोर्स विद एनिमल्स, उसको हम बोलते हैं बेस्टालिटी. ये भी आपका यूजीसी नेट का क्वेश्चन है. हैविंग सेक्स विद लोअर एनिमल इज नोन एज व्हाट? बेस्टालिटी. ओके? नाउ द थर्ड वन इज बकल कोइटस. व्हाट इज बकल कोइटस? Buccal means mouth and coitus means sex. So oral sex. ओरल सेक्स को हम यहाँ पे बकल कोइटस बोलते हैं. स्पेशली ये होमोसेक्सुअल, हेटेरोसेक्सुअल दोनों लोग प्रैक्टिस करते हैं. एंड इट इज पनिशेबल ऑल्सो. लाइक आपको पता है ओरल सेक्स लाइक क्या होता है. ठीक है? और इसको सिन ऑफ गोमोरा भी बोलते हैं. लाइक गोमोरा इज गोमोरा जो है, अकॉर्डिंग टू बाइबल, इसको सिन ऑफ गोमोरा, सिन मतलब पाप. ठीक है? इट्स कंसिडर्ड एज अ सिन. ओके? लाइक डूइंग बकल कोइटस. सो बकल कोइटस जब होता है तो ऑब्वियसली जो सीमेन, व्हेन द मेल विल अप्लाई हिज पेनिस इनटू द माउथ ऑफ द फीमेल, तो फीमेल के जो माउथ होते हैं वहां पे से हम स्वैप्स कलेक्ट करते हैं, बकल एरिया से, बीच से, चीक से. तो वहां से हमको सीमेन मिलेगा इसमें. ठीक है? नाउ ट्रिबैडिज्म और लेस्बियनिज्म. Lesbianism or lesbians, females love between or intercourse between two females.
विच इज अननेचुरल। ओके, तो ये आपका क्या है, ये भी आपका अननेचुरल सेक्स है। ओके, यस मैम। अब है आपका सेक्सुअल परवर्जन। सेक्सुअल परवर्जन या सेक्सुअल पैराफीलिया जिसको हम बोलते हैं, मींस यहाँ पर जो है, सॉरी यहाँ पे एल छूट गया है, यहाँ पे जो होती है अजीबो गरीब सी फैंटेसीज, ठीक है, जो जहाँ पे आप सीरियल किलर की बात कर रहे थे, तो मैंने एक मूवी देखा था, बेंगलुरु साउथ का था, वो रियल लाइफ स्टोरी था। वहां पे वो जो सीरियल किलर था वो फीमेल्स की अंडरगारमेंट्स को चुराता था, उसको पहनता था, उसके साथ स्पॉन्डल करता था, उसको उससे सेटिस्फेक्शन ग्रेटिफिकेशन मिलता था। तो इस तरीके की चीजें जो होते हैं ना, अजीब तरीके की फैंटेसीज वगैरह जो होती हैं, अदर देन सेक्सुअल इंटरकोर्स, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वहां पे पेनिट्रेशन हो या ना हो, उसके अलावा भी वो सब कुछ जो है आपका परवर्जन या पैराफीलिया में आता है, जो जो एक्ट जो है अनएक्सेप्टेबल है सोसाइटी में। ठीक है, इसके अंदर अब क्या क्या आ जाएगा, इसके अंदर हमारा सैडिज्म आ जाएगा, मैसोचिज्म आ जाएगा, पेटिज्म आ जाएगा, नेक्रोफिलिया, ट्रांसविटिज्म, एक्सिबिटिज्म, मास्टरबेशन, फ्रॉटिज्म, यूनिटिज्म, वोयरिज्म। अब इसका मतलब क्या क्या है बताते हैं। सैडिज्म क्या है, सैडिज्म क्या है बच्चे, चलो मैं बताती हूँ। Two partners are involving in a physical relationship, and one partner is dominant onto the other partner, and he is giving pain to the other partner. So giving pain to the other partner and seeing the other partner in pain is giving pleasure to that person is known as sadism. ठीक है, समझ में आया? यस मैम। मतलब अपने पार्टनर को पेन देना ड्यूरिंग सेक्स और उसको पेन में देख के एंजॉय करना, उसको हम सैडिज्म कहते हैं। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैसोचिज्म जो है वो ऑपोजिट है आपका सैडिज्म का। मैसोचिज्म में क्या है आपका, जो विक्टिम है वो बिकम स्लेव एंड द अदर पर्सन बिकम्स द मास्टर, एंड उसको पेन लेकर मजा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर शी इज टेकिंग पेन एंड शी इज इंजॉइंग द प्लेजर ऑफ द पेन। इस ये जो चीज है इसको हम मैसोचिज्म बोले। ठीक है, गॉट इट? यस मैम। अब आपका फेटिशम क्या है, फेटिश आपने सुना होगा था, फेटिश बिहेवियर है ये चीज। तो फेटिश, फेटिश मतलब अदर देन सेक्स, जहाँ पे इंटरकोर्स नहीं हो रहा है, बट द पर्सन को सेक्सुअल अराउजल आ रहा है, वो जो अदर पर्सन जो है फीमेल का, लाइक फीट, फीट से ऑब्सेस्ड है वो, हेयर या क्लोथ, अंडरगारमेंट्स, ब्रा, अंडरगारमेंट्स हो गए, वो सब चीज से को वो पहन रहा है, उसको स्मेल कर रहा है, ये सब चीज से उसको अट्रैक्ट हो रहा है, वो उसको अराउजल हो रहा है, उसको प्लेजर मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं फेटिशम। ठीक है, ठीक है। यस मैम। नेक्रोफिलिया क्या है बच्चे, हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप, हाँ बोलो, विथ डेड बॉडीज। मतलब सोचो, इट्स सो इनसेन ना, हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद डेड बॉडी। वो कोई मेंटली इंसान कर सकता है। सेक्टर 36 नोएडा का मूवी आपने देखा है, दैट विक्रांत मैसी वाला? यस मैम। यस मैम। उसमें वो क्या था, उसमें यही था ना, वो सीरियल किलर था, वो शिकार बनाता था, वो लड़का लड़की नहीं देखता था, वो बच्चों को शिकार बनाता था, वो उनको मारता था, उनकी डेड बॉडीज के साथ सेक्स करता था, टुकड़े टुकड़े करके फिर वो नाला में बहा देता। तो वो नेक्रोफिलिया का केस था। ठीक है, ये केस का ओके क्या तो मैम। नाम था, निठारी केस, निठारी केस ना। यस मैम। यस मैम। एंड ऑब्वियसली ये सोसाइटल नॉर्म में ये इलीगल ही है ना, ये लीगल, आप इसको लीगल समझोगे? नहीं समझ सकते आप डेड बॉडीज के साथ सेक्स करना। ऑब्वियसली द पर्सन हु यूज्ड टू डू दिस इज नॉट मेंटली फिट। नाउ ट्रांसपोर्टिज्म क्या है, ट्रांसपोर्टिज्म का मतलब होता है, ये एक तरीके का फेटिज्म ही है, जहाँ पे लड़के को मजा आता है लड़कियों का वो क्लोथ पहन के, साड़ी पहन के, उनका ब्रा, मैम मेरा भी नहीं अंडरगारमेंट्स पार्टी और थी।
ओके, शायद फिर से चला गया, वेट अ सेकंड। एम आई विजिबल? आई यस एम मैम। विजिबल, ऑडिबल? यस मैम। यस ओके। मैम। तो ट्रांसपर्टिज्म जो है ये भी एक तरीके का फेटिज्म ही है। यहाँ पर भी जो है, जो कल्प्रिट है उसको सेक्सुअल अराउजल मिलता है बाय वेयरिंग फीमेल क्लोथ्स, या फिर फीमेल की तरह तैयार होकर उसको मजा आता है, उसको अराउजल मिलता है वेयरिंग फीमेल ब्रा, पैंटीज, उनका क्लोथ, उनका लहंगा, उनका सूट सलवार जो भी है, उनकी तरह तैयार होना, मेकअप करना। ठीक है, सो दीज ऑल आर मेंटली डिसेबल्ड पर्सन। ओके, और ये सब पैराफिलिया में ही आता है आपका। फिर आपका नेक्रोफेजिया क्या है? व्हाट इज नेक्रोफेजिया? लाइक नेक्रोफिलिया जो है हैविंग सेक्स विद डेड बॉडी। नेक्रोफेजिया का मतलब होता है हैविंग सेक्स विद डेड बॉडी, म्यूटिलेटेड बॉडीज को लिक करना, खाना, लिवर को, लाइक उसके स्पेसिफिक विक्टिम के स्पेसिफिक डेड बॉडीज के पार्ट को निकालना, लिवर को, लंग्स को, ब्रेन को, फिर स्टोर करके रखना, फिर उसको खाना। ओके, वो आपका नेक्रोफेजिया में आएगा। ओके, गॉट इट? यस मैम। ये जो टॉपिक है ना सेक्सुअल ऑफेंस, ये बहुत ही ज्यादा अभी भी हमारे इंडिया में ये सेक्स रिलेटेड चीजों को बताने में टीचर्स बहुत हेजिटेट करते हैं। तो हमारे टीचर्स ने भी हमको ये खुलकर नहीं पढ़ाया। बट आई डोंट, दैट्स आई हैव चूजन दिस टॉपिक कि मैं इसको मैं इसको अच्छे से एलोबरेट करके बता सकूं, क्योंकि इट्स अ टॉपिक व्हेन इट्स हैपन, जब लोगों को करने में शर्म नहीं आ रही है ये सब हरकत, तो हमको पढ़ने में क्यों शर्म? दैट्स आई हैव चूजन दिस टॉपिक कि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं आपको, क्योंकि हमारे टीचर्स ने भी हमको ये एक्सप्लेन नहीं किया था, बस हमको नाम बता के छोड़ दिया था, हमने खुद से पढ़ा था। और ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चंस नहीं आते, मैंने आपको बताया अभी नेट में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जानना जरूरी है, जब जब सिलेबस में है तो जानने में क्यों हेजिटेट करना। नाउ व्हाट इज एग्जीबिशन? बहुत बार याद है, हम सबका चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है ये, जब हम किसी स्ट्रेंज प्लेस पे जाते हैं, बस हो गया या फिर हम रोड पे चल रहे हैं, तो हमेशा कोई एक पागल आदमी होता है जो हमेशा हमारा अपना पेनिस एक्सपोज करने का कोशिश करता है, दिखाने का कोशिश करता है। एज अ फीमेल मेरे साथ तो हुआ है ये, आप लोगों के साथ भी ये, बहुत सारी फीमेल्स ने ये चीज विटनेस किया होगा। जब आप रोड पे चल रहे हो या फिर आप बस में हो, तो कोई एक गधा या फिर कोई है जो मेंटली डिसेबल है, वो जानबूझ के आपको अपना शो करने का कोशिश करेगा, अपना प्राइवेट पार्ट। तो वो एग्जीबिशन में उसको मजा आता है स्ट्रेंजर को अपना प्राइवेट पार्ट दिखाकर। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज ही इज मेंटली डिसेबल्ड। बट उस इंसान को ये नहीं पता कि वो जो बिहेव कर रहा है वो सामने वाले विक्टिम को कितना डिप्रेस कर रहा है। ठीक है, एग्जीबिशन का मतलब होता है कि कोई भी अनसस्पेक्टिंग स्ट्रेंजर जो है, ज्यादातर ये बस ट्रेन में या भीड़ वाले जगहों पे ज्यादातर ये होता है, सुनसान जगह पे भी, लाइक द मेल इज एक्सपोजिंग हिज पेनिस, और वहां पे स्ट्रेंजर गुजर रहे हैं, वो उनको दिखा रहा है। तो ये है आपका एग्जीबिटिज्म, समझे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मास्टरबेशन, मास्टरबेशन से तो सब लोग अवेयर होंगे। सेल्फ स्टिमुलेशन ऑफ द जेनिटल्स फॉर सेक्सुअल प्लेजर, खुद से खुद को प्लेजर देना। ठीक है, इट गोज फॉर मेल एंड फीमेल बोथ, दे बोथ डस दिस। सो इट इज like it is not healthy because it will kill your sperm health, it will kill your that ये आपका वो फर्टिलिटी को भी खराब कर सकता है, लाइक बहुत ज्यादा मास्टरबेशन करना। ठीक है, ये भी आपका पैराफिलिया में ही आता है। इसमें लाइक द पर्सन गेटिंग सेटिस्फैक्शन, या फिर टच करना, या फिर किसी पर्सन को अपना बॉडी ऐसे किसी पर्सन के अगेंस्ट रब करना, या फिर अपने जेनाइटल को जबरदस्ती रब करके चले जा रहे हैं, तो ये सब चीज करके वो सामने, मतलब वो जो कल्प्रिट है उसको बहुत अराउजल होता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, तो इस तरीके से वो विक्टिम के साथ ये हरकत करता है। और ज्यादातर ये क्राउडेड, मैंने आपको बताया पब्लिक प्लेसेस में, बसेस में, ट्रेन पे ये ज्यादातर होता है। आप सबने ये विटनेस किया हुआ, ट्रेन पे जब हम सफर करते हैं तो जबरदस्ती का पीछे जगह है, फिर भी वो आपके बॉडी में टच करा, तो ये आपका फ्रॉटरिज्म है, होता है कि नहीं होता है गर्ल्स?
यस मैम। ये Yes, भी ma'am. आपका पैराफीलिया है। हाँ, ये भी आपका पैराफीलिया है। दिस इज एन इंसेन बिहेवियर। यूनिडिज्म क्या है? मतलब ऐसी सी चीजें हैं आपको पता नहीं होगा। मुझे भी लाइक देख के बहुत ज्यादा वो होता है, लाइक कैसे कैसे पागल पागल हो गए। किसी को यूरिनेट करते हुए देख के सेक्सुअल अराउजल आना, लाइक फैंटेसी सेक्सुअल अराउजल आना, लाइक इफ आई एम वॉचिंग अ पर्सन यूरिनेटिंग आई एम गेटिंग सेक्सुअली अराउज्ड। सो इट इज ऑल पैराफीलियाज, fantasies of insane person. Terms याद रखना, okay? And voyeurism. The last one is voyeurism. What is voyeurism? Voyeurism means watching porn movies. और अगर दो लोग इन्वॉल्व हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप में, उनको छुप छुप के देखना। कोई कपड़े चेंज कर रहा है, उसको छुप छुप के देखना। ठीक है, तो ये सब आपका porn मूवीज देखना, ये सब आपका voyeurism में आता है। ठीक है, गॉट इट? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। थैंक यू। समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। क्लास कैसा लगा? क्लास अच्छा लगा मैम। बहुत आप ये अच्छा था. सेक्सुअल ऑफेंसेस का आपको समझ में आया कि क्या क्या हो सकता है, क्या कितने तरीके के सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, कैसे वो क्लासिफाइड हैं। अगर आप कोई आपसे रेप के बारे में पूछते तो आप डिबेट कर सकते हो उससे कि नहीं ये रेप है, ये रेप है, ये रेप नहीं है, किस किस सर्कमस्टांसेस में ये चीज को हम रेप बोल सकते हैं। आप डिबेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? गर्ल्स, अब आपको पता है ना कि आप मतलब अगर कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता है, कि अब आपको पता है ऑल काइंड ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, उनकी क्या क्या सजा हो सकती है, isn't it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay students, Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। thank you so थैंक much, यू मैम। thank you so much, Thank you, ma'am. thank you Kushi, Thank you. थैंक यू मैम। thank you.